Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you will be quite well and will be enjoying your holidays. Before the start of lesson number 24, first we will have to go back to do the exercise of lesson number 23. First you will have to complete these sentences. In B part, there are given some phrases, and with the from your book there are taken some phrases, and with the help of these phrases you will have to fill in the blank spaces. Two pieces in front of the font of, these are called the phrases. So with the help of these phrases you will have to fill in blank spaces. Now we will go on page number 123, written exercise. In written exercise you will have to add because. Because is called a conjunction. So with you will have to, there are two separate sentence. In between two separate sentences you will have to put the conjunction because. First of all, I will start with the example. We all wore thick clothing. This is one part. Another part is it was cold. Now we will have to put in between two sentences because as a conjunction. We all wore thick cloth because it was cold. Let's see the next sentence. We make the next sentence. She took the dress back. This is one sentence. It was too small for her. She took the dress back because it was too small for her. So all these sentences you will have to use in the center as a conjunction of because. In next part, in B part, join these sentences using where. As we used as the conjunction because in A part, similar like that we will have to use where as a conjunction, like above examples. Accidents often happens there. Two main roads meet. Accident often happens where two main roads meet. So in the center we will have to use where. And C part, join these sentences using so that, in order that and might. ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि आपने so that लगाना है ताकि के लिए, in order लगाना है ताकि के लिए, उसके बाद आपने जो helping verb है might को इस्तेमाल करना है. Let's see another example. He drew a plan. He wanted to find the very easily. He drew a plan so that he might to find the way easily. We will go to on next page. We will do the exercise, or we will do our lesson part D. Finish this sentence using in case. आपने in case लगाकर sentence को complete करना है. Take an umbrella in case it rains. ठीक है, तो आप ये क्या करेंगे कि आप जो blank spaces में आपने in case लगाकर आपने जो suitable word होगा according to the relevant sentence वो आपने उसको इस्तेमाल करना है. फर्दर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको
बता दूंगा। वैसे ये कि मैं जो फील्ड बुक है वो फील्ड बुक की एक्सरसाइज है वो आपको सेंड कर दूंगा। लास्ट में क्या है, लास्ट में वो कहते हैं कि आपने विद लगाकर सूटेबल वर्ड इस्तेमाल करना है। आई डोंट एग्री विद यू, माई ब्रदर ऑलवेज ईट्स ब्रेड विद जैम। ठीक है, तो इसमें आपने विद लगाना है और विद के साथ आपने कोई सूटेबल वर्ड लगाकर इस्तेमाल करना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट the next lesson number 24 and our lecture number 17, tales of crime and detections, जुर्म और जासूसी की कहानियाँ। Tales of crime and detections consists of 4 well-known stories told in simple English। जुर्म और जासूसी की कहानियाँ 4 मशहूर कहानियों पर मुश्तमिल हैं जिन्हें आसान सादा अंग्रेज़ी में बयान किया गया है। वन इज़ अबाउट अ यंग मैन इन पेरिस। एक जो है कहानी वो पेरिस के एक नौजवान से मुतल्लिक है। हु विजिटेड अ गैम्बलिंग प्लेस, जिसने जो एक जुए खाने गया। एंड वॉन अ ग्रेट डील ऑफ मनी, और उसने बहुत बड़ी रकम जीती। ही आल्सो मेट अ स्ट्रेंजर, वो एक अजनबी से मिला। हु परsuaded हिम टू स्टे द नाइट देयर, जिसने उसे रात ठहरने के लिए आमादा किया। एंड शोड हिम टू हिज रूम, और उसे उसका कमरा दिखाया। द बेड वाज एन ओल्ड 4 पोस्ट, बिस्तर एक द बेड वाज एन ओल्ड 4 पोस्ट, यानी बिस्तर जो था वो 4 पुराने पायों वाला था। ही ले ऑन इट फॉर सम टाइम, वो कुछ देर के लिए उस पर लेट गया। बट कुड नॉट स्लीप, लेकिन सो ना सका। ही वाज लकी, वो खुशकिस्मत था। फॉर द स्ट्रेंजर प्लान टू मर्डर हिम, क्योंकि अजनबी का उसे कत्ल करने का मंसूबा था। एंड टेक द मनी, और उसे रकम ले जाने का नहीं, अजनबी का उसको मारने, उससे रकम हथियाने का मंसूबा था। जस्ट एज, बिल्कुल इस तरह, ही हैड मर्डर मैनी अदर मैन, जिस तरह के वो दूसरे बहुत से लोगों को कत्ल कर चुका था, मार चुका था। एज ही ले इन बेड, जो ही वो बिस्तर पर लेटा। ही लुक एट अ पिक्चर ऑन द वॉल ऑफ अ स्पेनिश हेड विद 5 फिगर, जो ही वो बिस्तर पर लेटा उसने दीवार पर 5 परों वाली एक हिस्पानवी टोपी देखी, हैट देखा। देन एज ही लुक्ड, जब उसने देखा, टू हिज हॉरर, वो खौफजदा हो गया। ही साथ उसने देखा, हाउ ही वाज गोइंग टू बी मर्डर, वो किस तरह कत्ल किया जाने वाला था। ठीक है, ये देखकर वो खौफजदा हो गया। इस टर्न योर नेक्स्ट पेज। नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी। अ टेरिबली स्ट्रेंज बेड, एक खौफनाक बिस्तर। द feathers were very long, 3 white, 2 greens. दो सब्ज और 3 सफ़ेद रंग वाले बड़े पर थे। द मून लाइट कमिंग इन द विंडो, खिड़की में से चाँद की रोशनी आ रही थी। मेड माई थॉट्स वंडर्ड, जो मेरे ख्यालात को इधर उधर भटका रही थी। आई रिमेंबर्ड द अदर मून लाइट्स इन इंग्लैंड, मैंने इंग्लिस्तान में अपनी दूसरी जो चांदनी रातें थीं उनको याद किया। आई फाउंड माई सेल्फ लुकिंग एट द पिक्चर अगेन, मैंने खुद को दोबारा तस्वीर को देखते हुए पाया। देन आई लुक्ड हार्ड, फिर मैंने उसे गौर से देखा। वट वाज आई लुकिंग फॉर, मैं जो देख रहा था, मैं क्या देख रहा, वट वाज आई लुकिंग फॉर, मैं क्या देख रहा था। गुड हेवंस, खुदा की बना। हैड
द मैन पुल्ड हिज हैट डाउन, क्या आदमी ने अपना जो हेड था उसे नीचे कर लिया था? नो, नहीं। द हेड इटसेल्फ वाज गॉन, हेड खुद गायब हो गया था। वेयर वर द फिदर्स, 3 वाइट 2 ग्रीन, और 2 सब्ज और 3 सफ़ेद पर कहाँ थे? नेक्स्ट, नॉट देयर, वहाँ नहीं थे। इन प्लेस ऑफ द हेड एंड फिदर, उन परों की और हेड की जगह पर वट डार्क ऑब्जेक्ट वाज, ये काले रंग की जो चीज़ थी ये क्या थी? दैट नो हिड हाफ द मैन फेस, जिसने अब आदमी के आधे चेहरे को छुपा लिया था। ये काली चीज़ क्या थी? वाज द बेड मूविंग, क्या बिस्तर जो था वो हरकत कर रहा था? आई टर्न ऑन माई बैक, मैं अपने कमर से मुड़ा, मैं पुश्त के बल मुड़ा। एंड लुक अप, और ऊपर की तरफ देखा। वाज आई मैड और ड्रीमिंग, क्या मैं पागल था, दीवाना था या ख्वाब देख रहा था? वाज द टॉप ऑफ द बेड रियली मूविंग डाउन, क्या वाकई बिस्तर की जो छत थी वो नीचे हरकत कर रही थी? ऑल इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, अपनी सारी लंबाई और चौड़ाई के साथ। सिंकिंग, नीचे आते हुए, सिंकिंग स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हुए। रेगुलरली, बाकायदगी से। साइलेंटली, खामोशी से। राइट डाउन ऑन टू मी एज आई ले अंडर नीथ, जैसे मैं इसके नीचे लेटा। तो मैंने देखा कि जो बिस्तर की छत थी वो सीधा मेरे ऊपर अपनी पूरी लंबाई और चौड़ाई के साथ नीचे आहिस्ता आहिस्ता, बाकायदगी से, खामोशी से सीधा मेरे ऊपर आ रही थी। माई ब्लड सीम टू स्टैंड स्टिल, मेरा खून रुकता हुआ, जमता हुआ महसूस हुआ। एन आइसी कोल्डनेस क्रेप्ट ऑल ओवर मी, और एक बर्फानी ठंडक मेरे सारे जिस्म में, सारे वजूद में दौड़ गई। एज आई टर्न माई हेड राउंड ऑन द पिलो, जैसे ही मैंने अपना सर तकिए के ऊपर मोड़ा। टू टेस्ट, ये देखने के लिए, ये मुआयना करने के लिए, वेदर द बेड टॉप वाज रियली मूविंग, क्या वाकई ही बिस्तर की चादर हरकत कर रही है? क्या वाकई बिस्तर की छत हरकत कर रही है? और नॉट, या नहीं कर रही है। बाय कीपिंग माई आई ऑन द मैन इन द पिक्चर, यानी तस्वीर वाले आदमी पर निगाह रखते हुए मैंने ये देखा, मैंने अपना सर तकियों के ऊपर रख दिया, मोड़ दिया, कि ये जायज़ा लेने के लिए कि वाकई ही जो बिस्तर की छत है वो हकीकतन हरकत कर रही है या नहीं कर रही है। द नेक्स्ट लुक इन दैट my dear students, today we will have to finish there over today's lecture. Inshallah, the next part, the next remaining part, we will finish tomorrow. My dear student, if you have anything you don't understand, you will contact me. Inshallah, I will resolve your problem. Along with, inshallah, I will send your classwork, along your homework. I will send you on WhatsApp number. Thank you very much. Wassalam.